जय हो राधा माधव जय हो कुंज बिहारी जय हो राधा माधव जय हो कुंज बिहारी जय हो गोपी जनवल्लभा जय हो गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय जय हो गोपी जनवल्लभा जय हो गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय जय हो यशोदनन्दन जय हो ब्रज जनरञ्जन जय हो यशोदनन्दन जय हो ब्रज जनरञ्जन जय जय हो यमुनातीरावनचारी जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी जय हो everyone loudly जय हो यमुनातीरावनचारी जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी जय हो राधा माधव जय हो कुंज बिहारी जय हो राधा माधव जय कुंज बिहारी जय हरे कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Shri Shri Radha Madhava Devi ki Shri Shri Radha Shyama Sundar ki Shri Shri Krishna Balarama ki Shri Shri Gaur Nitai ki Jagadguru Srila Prabhupada ki Gopremanande Hare Krishna. Does anyone know Srila Prabhupada जी के द्वारा ये जय राधा माधव कीर्तन सबसे पहले और कौन से साल में इंट्रोड्यूस किया गया था? Prabhupada Lilamrita mentions that ये 1971 जब शिला प्रभुपाद भारत आए थे अपने विदेशी छात्रों को लेकर परिक्रमा के लिए, he was visiting गोरखपुर और गोरखपुर में पहली बार शिला प्रभुपाद जी ने ये भजन गाया था.
Srila Prabhupada, while giving a definition for this, or purport to this beautiful song or bhajan, Prabhupada said this acts as a windows to Vrindavan. Nonetheless, जब Srila Prabhupada ये सर्वप्रथम पहली बार भजन गाते हैं, he just concluded singing the bhajan. His eyes were closed. He was holding a katal, and tears began to roll down from his eyes. जो भक्त उनके समीप बैठे थे, उनका कहना है कि ऐसा लग रहा था जब शॉवर खुलता है, it sprinkles water. Prabhupada was sitting here, and disciples were sitting at a distance, and the sprinkles of tears were going on all of them. And they describe, ऐसा लग रहा था उस समय जैसे कि पूरा का पूरा समय काल चक्र रुक गया है. Everything had become standstill. It was such a powerful moment. And ये एक बार नहीं, ये कई बार श्रील प्रभुपाद जी के संग इस प्रकार का घटना घटा. When he will go into this state of ecstasy or trance, and devotees didn't know what to do. They were stunned. There was a pin drop silence. There was no Hare Krishna Kirtan that happened. There was a pin drop silence. But some of the senior disciples, उनको पता था कि जब पहले भी श्रील प्रभुपाद जी के संग ऐसा हुआ है तो क्या करना चाहिए. They started to chant Hare Krishna. After a few minutes of chanting of Hare Krishna, Srila Prabhupada opened his eyes and he looked at all of them, and all of them were looking at him. And Prabhupada said, something happened? Prabhupada didn't even have an idea what had happened. Prabhupada said, something happened? Disciples said, no, Prabhupada, Hare Krishna, Hare Krishna. Then Prabhupada said, all right, class is over. The class began with Jai Radha Madhava, the class ended with Jai Radha Madhava. Long story short, we'll begin our discussion with Srila Prabhupada's arrival in Vrindavan. वो कहने से पहले we'll offer our prayers together, and then the whole objective of today's program, we were not planning to have it, but we thought let's have this morning session at least. So I'll try to give you some Manasik Parikrama. What is so special with Vrindavan and what all places of pastimes are there, वह सब तो कवर नहीं कर पाएंगे, but इस यात्रा में जो कुछ स्थान हम जाने का प्रयत्न करेंगे, I'll give you a tour of it. तो इसलिए I had asked you to bring your pen and paper. You can write down, so you can keep marking. Did you visit those places or not? हम परिक्रमा कल सुबह स्टार्ट करेंगे. आज शाम को भी हम परिक्रमा करेंगे, but that will be only for 3 specific temples. But as such, पद यात्रा वो कल सुबह करेंगे. तो जैसे गोवर्धन में हुआ था, कुछ भक्त पीछे रह गए थे, तो अगर कल पद यात्रा में भी अगर ऐसा हो तो आपके पास आपका मैप है, तो आप रास्ते में पूछ सकते हैं ये फलाना ठिकाना जगह कहाँ है, and you can keep on marking and keep on visiting those places. All right? Om Ajnanathmirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamsha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatai Deshatarine
नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौतुसे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. It was 1966. In a lecture, Srila Prabhupada said, I am missing Vrindavan. I have come so far and so far away from that land of Krishna. I was living so peacefully there without any anxiety. And I'm here today sitting amongst all of you. All of you means the hippies. This is New York, amongst all of you. In the big city of America and one of the capital house of the whole world, so far away. And I'm just thinking, what am I doing here? I was so happy and I would be so happy to be back in Vrindavan. It would be good for my consciousness to be there in Vrindavan. But I am here to fulfill the order of my spiritual master. ये मैंने इंग्लिश में इसलिए बोला क्योंकि these are words of Prabhupada. So I didn't want to really speak in Hindi. उम्मीद करते हैं ये वचन आपको समझ आए होंगे. So Srila Prabhupada, जैसे हम जानते हैं 1965 में वृंदावन छोड़कर he was living very comfortably. I mean अभी correct it's a different situation today. There is so much honking, there is so much dust, traffic. उस समय तो कुछ भी नहीं था. इस सब की शुरुआत भी इस्कॉन के द्वारा ही हुई है. बिकॉज श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा ही इस हरे कृष्णा मूवमेंट या इस्कॉन या कृष्ण जन्मभूमि को विश्व भर में जाना गया, वरना यहाँ कोई भी नहीं आता था. सो 1971 में जब श्रीला प्रभुपाद जी सर्वप्रथम यहाँ पर आए, उनके संग 40 शिष्य थे, अमेरिकन डिसाइपल्स. एंड यहाँ की म्यूनसिपैलिटी ने श्रीला प्रभुपाद जी के वेलकम के लिए एक बहुत बड़ा समारोह आयोजन किया था, जहाँ पे मेयर इत्यादि जो भी डिग्निटरीज थी वह स्वयं स्टेज पे जाकर श्रीला प्रभुपाद जी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं. एंड दे ऑल हैड वन थिंग कॉमन टू से कि हमारे स्वामी जी श्रीला प्रभुपाद जी ने वो कर दिखाया है जो आज से पहले कोई कर नहीं पाया. आज वो कर दिया है जहाँ विश्व भर में लोग कृष्ण की लीला स्थली वृंदावन के बारे में जानते हैं. इस प्रकार से श्रीला प्रभुपाद वॉज ग्लोरीफाइड. परंतु उस स्थिति तक आने तक प्रभुपाद जी को 6 साल का बड़ा ही संघर्ष करना पड़ा. इनफैक्ट 1971 में जब श्रीला प्रभुपाद जी अपने शिष्य को यहाँ लेकर आए थे, तो ही हैड लेफ्ट फ्रॉम लॉस एंजलिस LA. रुक्मिणी द्वारकाधीश जो विग्रह है वहाँ पर, तो श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं रुक्मिणी द्वारकाधीश से प्रार्थना कर रहा था या बातचीत कर रहा था कि हे प्रभु, आप ही ने अपनी इच्छा के अनुसार मुझे वृंदावन मुझसे छुड़वाया और आप मुझे वृंदावन से इतनी दूर अमेरिका लेकर आए. और जब अमेरिका में सब कुछ स्टेबल हो गया है, सब स्थिर हो गया है,
तो ना जाने आप क्यों मुझे वापस वृंदावन खींच कर ला रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई आर यू ब्रिंगिंग बैक मी टू वृंदावन। और जब 1971 में शिला प्रभुपाद जी यहाँ आते हैं, ये 2 महीने पहले की बात है, और जब ये आयोजन होता है, प्रोग्राम का आयोजन होता है, प्रभुपाद जी भी प्रवचन देते हैं, ही गिव्स एन इनॉग्रल एड्रेस। उसी एड्रेस के बाद एक फैमिली शिला प्रभुपाद जी से मिलने के लिए आती है। उनका नाम पब्लिकली नहीं गिवन है, सो आई विल ऑल्सो नॉट टेक दैट। वह फैमिली पति पत्नी प्रभुपाद जी से मिलते हैं। प्रभुपाद जी का जब वो इनॉग्रल प्रोग्राम समाप्त होता है तो एक परिवार मिलने के लिए आता है। जैसे 1971 कार्तिक का महीना है, वो परिवार आके कहता है कि हम काफ़ी समय से एक लैंड वृंदावन में हमारे पास ब्रजवासी थे, हमारे पे भूमि है, हम काफ़ी समय से हमारी इच्छा थी कि वो हम किसी स्वामी या किसी को दान में दें ताकि वहाँ श्री राधा कृष्ण का खूबसूरत मंदिर बने। Now Srila Prabhupada just 2 months ago at Los Angeles in front of Rukmini Dwarkadish, he was talking to them and saying, आपने ही मुझे 1965 में मैं वृंदावन में शांति से बैठा था, आप ही ने मुझे यहाँ अमेरिका लेकर आए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मुझे अमेरिका से इंडिया वापस क्यों लेके जा रहे हैं। और पहले ही विजिट, पहले ही दिन में प्रभुपाद जी को एक भक्त मिलते हैं, कहते हैं हम आपको जमीन दान में देना चाहेंगे। हिज होलीनेस सतस्वरूप महाराज प्रभुपाद लीलामृत में लिखते हैं, ये पहली बार नहीं हुआ था, ऐसा पहले भी हुआ था। प्रभुपाद जानते थे, लोग कहते हैं, पर कई बार ये जमीन का जो होता है लेन देन, ये बहुत लंबा हो जाता है। प्रभुपाद जी ने सुना, प्रभुपाद जी ने मुस्कुराया, कहा कि हम सोचेंगे इस बारे में। नॉनदलेस प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में रुकते हैं और वहाँ पे अपने शिष्यों के संग 1 महीने के लिए भक्ति रसामृत सिंधु पे प्रवचन होता है। पर साथ ही साथ अपने उन्होंने शिष्य को भी कहा कि आप जाइए, उनसे मिलिए और उनसे बोलिए कि हम इंटरेस्टेड हैं और वो लैंड लेना चाहते हैं। सो ये 1971 की कहानी शुरू हुई और ये 1973 2 साल लग गए ये जमीन मिलने के लिए। जमीन कोई और नहीं, रमन रेती पे जहां आज इस्कॉन का मंदिर है, ये वही जमीन है। उस समय यहाँ कुछ भी नहीं था, ये पूरा जंगल था। आपका अगर जैसे हम कल परिक्रमा मार्ग में जाएंगे तो अगर एक प्रकार से देखा जाए तो फर्स्ट टेम्पल वॉज राधा मदन मोहन। मदन मोहन के बाद आपके बाकी मंदिर शुरुआत होते थे। उधर से लेकर अब तक, कल जब आपको काफ़ी किलोमीटर चलना पड़ेगा, पर उससे पहले सिर्फ जंगल, घना जंगल था ये। तो प्रभुपाद के शिष्यों ने भी कहा, प्रभुपाद ये तो कोई अच्छा स्थान नहीं है, ये तो बहुत बाहर है, जंगल में का इलाका है, यहाँ पे कौन आएगा। जस्ट लाइक भुवनेश्वर में, एनी वन ऑफ यू हैव बीन टू भुवनेश्वर? भुवनेश्वर इस्कॉन भुवनेश्वर टेम्पल, ओके। सो जब प्रभुपाद जी ने वो वहाँ पे जमीन ली थी, वो भी जंगल था, जस्ट लाइक जुहू टेम्पल ऑल्सो। जब वो भी जमीन ली थी, वो भी बिल्कुल एक जंगल था, अलग इलाका था। प्रभुपाद सेड इन फ्यूचर दैट विल बिकम द हब लाइक जुहू बिकेम। सिमिलरली भुवनेश्वर के लिए कहा था, सिमिलरली वृंदावन के लिए कहा था कि यही जगह आप भविष्य में जाकर विल बिकम द हब ऑफ वृंदावन लाइक दिस। प्रभुपाद ने कहा, देखिए जो जगह है रमन रेती है, यहाँ पे कृष्ण ने बहुत लीलाएं रची हैं और साथ ही साथ वहीं से परिक्रमा शुरू होती है। तो हमारा जो ये स्थान है, ये सामने परिक्रमा मार्ग है, यहाँ पे परिक्रमा समाप्त होती है और इस्कॉन मंदिर से परिक्रमा शुरुआत होती है इस रोड को क्रॉस करके। सो प्रभुपाद जी ने कहा आप उनको फॉलोअप करिए। 2 साल तक भक्त यहाँ रुक के उनका फॉलोअप करते रहे, पर फिर भी वह जमीन नहीं मिली। कारण क्या था? कई और अम्मा बाबा थे जो उस जमीन को लेना चाहते थे। फाइनली जब प्रभुपाद जी के पुश करने पर शिष्यों ने कहा कि देखिए अब आपको निर्णय लेना पड़ेगा। दिस इज 1973, दिस इज अराउंड द टाइम व्हेन मायापुर का जब हमें जमीन मिला था। एंड आई एम कंटिन्यूइंग दिस पास्ट टाइम फ्रॉम लास्ट मायापुर यात्रा व्हेन आई वाज डिस्कसिंग अबाउट मायापुर टेम्पल एंड हाउ वी गॉट मायापुर लैंड। तो मैंने कहा था कि कैसे 1 हफ्ते के उपरांत वृंदावन की जमीन भी आई थी। Then I said I'll continue this over here. So I'm just kind of continuing that story from last Mayapur यात्रा over here. So तब उस समय प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य को भेजा, पत्र भी लिखा और कहा कि देखिए आपको निर्णय लेना पड़ेगा। 2 साल बीत चुके हैं। It was a no conflict land, clear title. ये सब मुझे अभी हाल ही में पता चला क्योंकि हिंजेवाड़ी में हम भी संघर्ष कर रहे हैं जमीन लेने का। हम तो खरीदने पे संघर्ष कर रहे हैं। हम खरीद रहे तो संघर्ष हो रहा है। सोचिए कोई दान देगा तो क्या होगा। It was a very nice family. They had a deity of Radha Krishna and they were like not sure what to do. So उनकी जो दादी थी उन्होंने कहा ठीक है,
हम निर्णय नहीं ले पा रहे क्योंकि इतने सारे लोग हैं. एंड वेरी इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई दे वर नॉट एबल टू गिव लैंड टू ISKCON वाज अ ट्रेडिशनल रीजन. ट्रेडिशनल रीजन क्या था? to give you to help you understand this, 1930 या 31 में शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वृंदावन परिक्रमा के लिए अपने भक्तों को लेकर आए थे, जिसमें करीबन 1000 भक्त थे. उस समय तक भारत की स्थिति ऐसी थी, कास्ट गोस्वामी का एक प्रकार से इतना व्हाट यू से इन्फ्लुएंस था. अनलेस यू आर बॉर्न इन अ ब्राह्मण फैमिली, आप ब्राह्मण वाले कर्म कर ही नहीं सकते, आप विग्रह की सेवा कर ही नहीं सकते, आप मंत्रों का उच्चारण कर ही नहीं सकते. सोमा सो जब शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वृंदावन परिक्रमा के लिए भक्तों को लेकर आए, कुछ मंदिरों ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मंदिर में आज्ञा ही नहीं दी. कुछ जगह पे तो पथराव भी हुआ था. हम कहते हैं मुसलमानों ने पथराव करा है, यहाँ पे इनफैक्ट ब्राह्मणों के द्वारा भी हुआ था. like that. So the point is because that was the consciousness, जो एक established thought था कि अगर ब्राह्मण हो तभी आप ब्राह्मण कहला सकते हो, अदरवाइज नहीं. तो इस फैमिली के ऊपर बहुत प्रेशर था कि देखिए अभय चरण या शिला प्रभुपाद जी ने भी काफी विदेशियों को ब्राह्मण बना दिया है कि ये सब गलत है, ये संस्कृति के खिलाफ है. इसलिए ये परिवार 2 साल तक जमीन नहीं दे पाए, जिनकी बहुत इच्छा थी. कहने को सब ने आके शिला प्रभुपाद जी का गुणगान करा और सब ब्रजवासी चाहते थे कि शिला प्रभुपाद जी यहाँ पर रहें, उनका स्थान हो, क्योंकि उन्होंने ब्रज की महिमा पूरे विश्व में. पर जो कास्ट गोस्वामी थे उस चीज को तैयार ही नहीं थे. सो उनके घर के वरिष्ठ के कहने पर उन्होंने कहा कि देखिए हम तो निर्णय नहीं ले पा रहे, और यहाँ पे जो भी कुछ होता है यहाँ निर्णय राधा रानी के द्वारा होता है. उन्होंने कहा हम निर्णय राधा रानी पे छोड़ते हैं. तो हमारे भक्तों ने पूछा क्या करना होगा? बोले हम चिट तंबोला खेलेंगे राधा रानी के संग. एक चिट पे लिखेंगे यस, एक चिट पे लिखेंगे नो, और उसको बॉक्स में हिलाएंगे, और फिर जो पर्ची निकलेगी वही राधा रानी की इच्छा होगी. दिस इज अ टेंस मोमेंट. 2 साल से आप संघर्ष कर रहे हो और गलती से चिट दूसरी निकल गई, ऊपर से डंडे पड़ेंगे प्रभुपाद के. एंड यू नो दे डिडंट हैव टाइम टू कंसल्ट प्रभुपाद. उस समय कोई मोबाइल फोन तो था नहीं, फटाफट प्रभुपाद को फोन कर लिया. दे आर ऑन द स्पॉट, व्हाट टू डू? दे सेड जय श्री राधे, कर लीजिए. सो जब करने की बात आई तो उन्होंने कहा देखिए जस्ट टू मेक श्योर दिस इज नथिंग फ्रेम्ड हियर, हम चाहते कि आप ही 2 पर्चियां बनाएं और आप ही चयन करें. और टेंशन, अभी बाई चांस गलत निकल गई तो और डांट पड़ेगी, है ना. अगर कोई और निकालता तो किसी और पे दोष दे सकते थे. तो यहाँ पे फिर वो पर्ची को डाला बॉक्स में, पर्ची हिलाई और फिर पर्ची निकाली, और श्रीमती राधा रानी की कृपा से उस पर लिखा था यस. उस प्रकार से वृंदावन की जो जमीन है फाइनली हमें प्राप्त हुई. शिला प्रभुपाद जी के पास टेलीग्राम जाता है. आई बिलीव प्रभुपाद वाज समवेयर इन बंगाल दैट टाइम. प्रभुपाद जी इमीडिएटली कहते हैं 1973, दिस इज समवेयर अराउंड द समर टाइम ओनली. प्रभुपाद कहते हैं तुरंत हम भूमि पूजन का नियोजन करेंगे. प्रभुपाद जी बॉम्बे के रास्ते से होते हुए यहाँ पर आते हैं, भूमि पूजन करते हैं. भूमि पूजन ही करा था, भूमि पूजन का अपना विधि विधान होता है, उतना ही करा था. कोई फेंसिंग कुछ नहीं करी थी. जो थोड़ा सा सेटअप करा था, उसी रात यहाँ पर कुछ बदमाश आकर उस सबको तोड़ देते हैं. एंड द स्ट्रगल कंटिन्यूज. आई डोंट गो इनटू मच डिटेल्स, बट एनीवेयर द स्ट्रगल हैड बीन इमेंस. ये जो आज इतना भव्य, आप में से कितने लोग कृष्ण बलराम मंदिर होकर आ चुके हैं? आज जो ये इतना भव्य मंदिर बना है, इसके लिए ना जाने कितने कितने भक्तों ने अपना जीवन अर्पण किया है. इनफैक्ट एक समय तो यहाँ पर एक भक्त जो टेम्पल प्रेसिडेंट थे, उनके माथे पे बंदूक रख दी गई थी, निकलो या तुम्हें हम अभी गोली मार देंगे. लाइक दैट वाज द सिचुएशन. सो एनीवेज, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एटलीस्ट जब आप वहाँ जाएं तो केवल ये सोच के मत खुश होइएगा कितना अच्छा है, कृपया उसका संघर्ष याद रखिएगा. और उस संघर्ष के बारे में आपको पढ़ना है तो लीलामृत के 4th वॉल्यूम में उसके बारे में उल्लेख आता है, या वृंदावन मंदिर की स्थापना करने में क्या क्या हुआ. वो तो केवल संघर्ष तब तक की चर्चा आती है जब तक शिला प्रभुपाद थे. उसके बाद का संघर्ष तो कम से कम 2000 तक चला है, जब फाइनली. तो हमारे ही इस्कॉन मंदिर में जो ये प्रॉपर्टी है वो अलग अलग भागों में बटी हुई थी, अलग अलग लोगों ने कब्जा करा हुआ था.
कहीं पे कोई चाय बेच रहा था, तो कहीं पे किसी ने कहते हैं कन्फेक्शनरी की दुकान खोली हुई थी। स्लोली स्लोली ग्रेजुअली ये सारा धीरे धीरे करके ये हमें एरिया प्राप्त हुआ करके। देखने को आपको लगता होगा वृंदावन में तो इतनी सारी जगह अवेलेबल है, फिर भी इतना संघर्ष क्यों? संघर्ष जगह को लेकर नहीं, संघर्ष था यहाँ की एक्सेप्टेबिलिटी, लोगों के द्वारा यहाँ पे अपनाना। और यहाँ पे जब लोगों को दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द कास्ट गोस्वामीज, इस वजह से काफी संघर्ष हुआ। एनीवेज, शिला प्रभुपाद जी की बहुत इच्छा थी, संघर्ष था, फिर भी बहुत इच्छा थी कि वृंदावन में टेम्पल होना चाहिए। 1975 रामनवमी के दिन यहाँ पे इस्कॉन वृंदावन टेम्पल की इनॉग्रेशन हुआ। हम रामनवमी तक तो नहीं रुके हैं, पर हर साल रामनवमी पे यहाँ बहुत बड़ा त्यौहार होता है इस्कॉन कैंपस में, ऑन द ओकेजन ऑफ इट्स एनिवर्सरी लाइक दैट। एनीवेज, शिला प्रभुपाद का बहुत इच्छा था कि वृंदावन में भक्तों के लिए एक स्थान होना चाहिए। जब विदेश से हर जगह से भक्त आए तो इस्कॉन के भक्त आकर यहाँ पर बैठकर भजन कर सकें, भगवान की लीला का श्रवण कर सकें, इत्यादि इत्यादि, बिकॉज वृंदावन इज दी टॉप मोस्ट प्लेस। शिला प्रभुपाद जी मायापुर 9 अप्रैल 1975 में एक लेक्चर में वृंदावन के बारे में चर्चा करते हैं। I have taken a snapshot of it and speak something about that. What did Prabhupada said? Very beautiful thing. What is this Vrindavan? And शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, ये वृंदावन क्या है? वन का मतलब होता है फॉरेस्ट, बट ये कोई साधारण वन नहीं है। कहने को यहाँ पे 12 वन आते हैं, परंतु वृंदावन सब में अनोखा है। वृंदावन नाम ही पड़ा है वृंदा देवी के ऊपर। वृंदा मतलब तुलसी देवी, वृंदावन मतलब दिस इज द फॉरेस्ट विच हैड आई डोंट नो नाउ द अबंडेंस ऑफ तुलसी महारानी। या हर जगह तुलसी महारानी के पौधे या वृक्ष आप कहना चाहें उस प्रकार से पाए जाते थे, लाइक दिस। प्रभुपाद कहते हैं यहाँ के जो वृक्ष हैं वह कल्प वृक्ष हैं, जो प्रभु कृष्ण की अलग अलग प्रकार से सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। एंड नाउ ही मेक्स अ वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट। आप देखेंगे यहाँ पे हर प्रकार के बंदर यहाँ के अनोखे हैं, कहते हैं हर प्रकार के पशु पक्षी, पेड़ पौधे मिलेंगे। तो पर कहते हैं ये सभी स्व इच्छा यहाँ पे भगवान की सेवा करने के लिए स्व इच्छा यहाँ पर जन्म लिया है। दे ऑल आर स्पिरिचुअल बींग्स। किसी को यहाँ जबरदस्ती नहीं बुलाया गया है इस गोलोक वृंदावन में। सबकी सिर्फ एक ही इच्छा है कि हम कैसे प्रभु की सेवा कर सकें। ये जो वृक्ष हैं, जो पेड़ पौधे हैं, ये सभी जीवात्मा हैं, और ये कोई साधारण जीवात्मा नहीं है, बिकॉज दे हैव डिसाइडेड टू सर्व कृष्णा बाय सप्लाइंग फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। ये तो खैर उस संदर्भ में बात आ गई जो गोलोक और वृंदावन की लेकर। इनफैक्ट आज के समय की भी बात करें तो कोई साधारण नहीं है। I'll give you one incident. This is from my spiritual master's, one of his yatra. Many years ago, this is somewhere in late 90s, करीबन 1000 भक्त यात्रा के लिए यहाँ पर आए हुए थे, और वह जाने के प्रयत्न कर रहे थे, आई बिलीव कामयावन, वृंदा देवी के मंदिर के लिए। शाम का समय हो चुका था और एक आगे गाड़ी चल रही थी, पीछे कम से कम 20 बसें थी, और जो आगे गाड़ी चल रही थी उसका काम था मार्गदर्शन करना कहाँ पे मुड़ना है। परंतु जो भक्त गाड़ी में बैठे थे वो अपनी ही लीला में थोड़े मग्न हो गए, और वो भूल गए टर्न कहाँ लेना था, और वो गाड़ी आगे चलती चली गई और पीछे बस आती चलती गई। और जब कुछ समय के बाद भक्तों को याद आया तो भक्त भी परेशान, अरे ये रास्ता तो जाना पहचाना नहीं लग रहा, अब मोड़ना सही बात नहीं है, मोड़ेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, लोग बोलेंगे हमने गड़बड़ करी है, तो चलो सीधे ही चलते हैं, देखते हैं। ये उस समय की बात है जो गूगल मैप्स नहीं हुआ करते थे। शायद गूगल मैप्स आपको खेत से कोई रास्ता दिखा देता। नॉनदलेस दे वेंट अहेड एंड आगे चलते चलते जो रोड थी और पतली होती चली गई। फाइनली रोड बिकेम अ सिंगल लेन, सो मच सो कि उस समय केवल एक बस अगर आई है तो केवल एक बस जितना ही रास्ता था, अब वहां से एक साइकिल भी होके नहीं जा सकती थी, और दोनों तरफ खेत थे। जैसी अब सबकी स्पीड धीरे हो गई और सबको पता है कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, ये कामयावन का रास्ता तो नहीं है। इतने में खेत में खेती करने वाले कोई किसान भागते हुए आए, और उन्होंने जो आगे गाड़ी थी उसको रोका, बोला आप कहाँ जा रहे हैं?
बोले हमें कामयावन जाना था। बोला वो कामयावन, वो जो 3 गांव पहले ही छूट गया है, आप तो बहुत दूर आ गए हैं, और आप जो आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे दी एंड है, कोई रास्ता नहीं है, और आप आगे से गाड़ी मोड़ भी नहीं सकते हैं। और फिर उस किसान ने पीछे मुड़ के देखा और बसों की लंबी लाइन, और गाड़ी में बैठे भक्त से पूछा कितनी बसें हैं? भक्त बोला 20। तो किसान बोला ऑल द बेस्ट। अब कैसे मोड़ोगे? अब सबकी टेंशन, क्या करना है अब? नाउ व्हाट कैन यू डू? यू कैन टेक द कार और द बस ऑन द फील्ड। वो वहां सब खेती है, तो उन्होंने थोड़ी सी गाड़ी आगे बढ़ाई, तो वहां पे एक खेत पड़ा था जहां पे कोई धान नहीं था, जहां पे अभी फार्मिंग नहीं हुई थी। तो जो आगे भक्त थे उन्होंने सोचा कि यार जल्दी से गाड़ी घुमा लेते हैं, यही इकलौता पैच है जहां से हमारी सारी बसें घूम सकती हैं। पर क्योंकि खेत है, किसान को पता चल गया, गुस्सा करेगा, तो उन्होंने फटाफट इंडिकेट करा और सब ने तुरंत गाड़ी मोड़ी। तो जो आगे जो गाड़ी में बैठे थे उनकी गाड़ी तो मुड़ के आसानी से आ गई। जैसी बसें वहां पहुंची, बसें आधी ही मुड़ी थी, कुछ किसान भागते हुए आ गए, रोको रोको रोको। Now this was a full tense moment. Now you know, for a farmer, how much they love their land, and this is an agricultural land. उसके ऊपर तुमने बसें चढ़ा दी हैं, What's gonna happen? और उनके हाथ में डंडे थे, और अब सबकी जान सुखी हुई है, अब क्या होगा यहाँ पर। और वो किसान भागा भागा आया, और जब उसने देखा, अब साथ के सब those days were not the days when there were AC buses, non AC buses, सारे के सारे भक्त खिड़की से बाहर देख रहे हैं क्या हो रहा है, और सबके माथे पे खूबसूरत वैष्णव तिलक। और जब ये किसान आया, उसने देखा अरे तो सारे वैष्णव हैं, वो नाचने लगा, बोला कितना बड़ा भाग्य है मेरा, कितना बड़ा भाग्य है मेरा, इतने सारे वैष्णव मेरे खेत पे पधारे हैं, इस बार तो इस साल मुझे श्री राधा रानी की कृपा बिल्कुल मिलेगी, मेरी फसल सबसे अच्छी होगी। वो नाचने लगा, गुणगान करने लगा। एंड ऑल डिवोटीज वर शॉक्ड, क्या कभी ऐसा भी हो सकता है? And when I was reading about this particular incident, I was just thinking, शहर के लोग और गांव के लोग में कितना अंतर होता है। And that to not ordinary गांव, वृंदावन के, that वैष्णवा, that ब्रजवासी was seeing, वो जो बसेस उसके खेत पे चढ़ गई हैं, उसको लग रहा है श्रीमती राधा रानी की कृपा है। क्यों? क्योंकि ब्रज वैष्णवों के चरण कमल इस खेत पे पड़े हैं, तो जरूर यहाँ पे अच्छी फसल होगी। एनीवेज, तो शिला प्रभुपाद कहते हैं यहाँ जो भी रहते हैं, चाहे पेड़ पौधे हों, वृक्ष इत्यादि जीव जंतु हों, उन सबकी सिर्फ एक ही इच्छा रहती है कि कैसे हम कृष्ण की सेवा कर सकें। In fact, Srila Prabhupada says they are non-different from Krishna. शक्ति शक्ति मतयोर अभेद। जो यहाँ रहते हैं, चाहे वृक्ष हो चाहे कांटे हो, वह सभी कृष्ण की सेवा के लिए हैं, और उनमें और कृष्ण में कोई भी भेद नहीं है। So whatever description is there of Vrindavan, that is expansion of Krishna's pleasure potency. They are not different. इस प्रकार से यहाँ बात की गई है। उसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे आज शाम को, जब हम राधा गोकुलानंद मंत्र में जाएंगे। We'll quote some shlokas and we'll describe that time. So इस प्रकार से शिला प्रभुपाद बताते हैं, वृंदावन एक ऐसी जगह है जहाँ तुलसी महारानी के वृक्ष हैं, और वहाँ पे हर कोई जीव जंतु, यहाँ तक कि एक कांटा भी श्रीमती राधा कहते हैं श्री राधा कृष्ण की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। लाइक दैट। सो बात करते हैं हमारी परिक्रमा की। ये परिक्रमा शब्द कहाँ से आता है? वृंदावन परिक्रमा, गोवर्धन परिक्रमा, ये शब्द आता है प्रदक्षिणा। हम लोग मंदिर में प्रदक्षिणा लगाते हैं, उसी प्रदक्षिणा से शब्द आता है परिक्रमा, उस प्रकार से कहा गया है। सो जैसे मंदिर में हम परिक्रमा लगाते हैं भगवान के चारों तरफ, वैसे ही वृंदावन या गोवर्धन भगवान से अभिन्न है, इसलिए भक्त यहाँ पर इस पूरे वृंदावन की या गोवर्धन की इत्यादि की परिक्रमा लगाते हैं। परिक्रमा लगाते समय हमारे मन का भाव कैसा होना चाहिए? दैट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। कई बार हम कुछ अलग अलग चीज़ों में हमारा मन चला जाता है। इस वन पर्टिकुलर श्लोका आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे, नहीं तो नहीं, विल शेयर इट ऑन द ग्रुप। आप उसको मेमोराइज करके उसको दोहराने का प्रयत्न कर सकते हैं जब हम परिक्रमा पे निकलेंगे।
इट इज स्पोकन बाय श्री चैतन्य महाप्रभु. श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना धनम न जनम न सुंदरम कविता व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात भक्तिर अहि तो की थी. इन अदर वर्ड्स वो कहते हैं मेरे अंदर कोई भी भौतिक इच्छाएं नहीं है, मैं सिर्फ भगवान की सेवा करना चाहता हूँ. हे प्रभु, जन्म जन्मांतर, आई मीन बर्थ आफ्टर बर्थ, लेट मी ओनली हैव वन डिजायर दैट आई कैन सर्व यू. And we should be in a prayerful mood when we are on our trip to take darshan of Vrindavan Dham, like that. And what is the idea of this parikrama? Just like Sri Chaitanya Mahaprabhu के हम वृंदावन परिक्रमा से देखते हैं, what is a desired result? Sri Chaitanya Mahaprabhu जब वृंदावन परिक्रमा के लिए आए थे, I guess I haven't spoken about, right? Maybe I'll just tell you in brief. श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन काल में दो ऐसे समय थे जिनसे पूर्णतः ही उनके जीवन में परिवर्तन आया. एक समय था जब वह अपने पिता के श्राद्ध के लिए गया गए और वहां पे ईश्वरपुरी से मिलते हैं. And he took initiation. That was just a formality. But nonetheless, उस समय के बाद से उन्होंने शुरू करा था हरे कृष्णा मूवमेंट, संकीर्तन. ये था पहला ट्रांसफॉर्मेशन इन श्री चैतन्य महाप्रभु या निमाई पंडित के जीवन में. निमाई पंडित से बने हुए श्री कृष्णा चैतन्य. That was the first. उसके बाद वह निरंतर ही हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में मग्न रहते थे. That was the situation. Can they play at the reception? एंड देन दूसरा परिवर्तन श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन में आया, वह था जब वह वृंदावन परिक्रमा के लिए आए 29 साल की उम्र में. अब ये अंतर हो गया करीबन 15 साल का, 14 से 15 साल. तो इन 14 साल में जब वह गया गए थे, तब से लेकर अगले 14-15 साल तक उन्होंने निरंतर नृत्य किया है और निरंतर हरे कृष्ण कीर्तन का संकीर्तन किया है और सबको कराया है. ही ट्रैवल ऑल ओवर भारत भूमि एंड लाइक दैट ही डिड इट. और जब वह वृंदावन परिक्रमा के लिए आए, 2 महीने के लिए वृंदावन में थे. उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु के मूड में, भाव में परिवर्तन आया और अब वह यहाँ से जाने के बाद विरहा विप्रलंब के भाव में, श्रीमती राधा रानी के विरहा में, श्रीमती राधा रानी के भाव में उस प्रकार से अपने जीवन के अगले 18 साल जगन्नाथपुरी में गंभीरा में बिताते हैं. Now he did not went out even once for Harinam Sankirtan. He was constantly in the mood of separation from Lord Shri Krishna and Vrindavan. That was a transformation. इस संदर्भ में His Holiness Indradumna Swami Maharaj in one of his parikramas, he was making a point. जब हम इस प्रकार के वृंदावन परिक्रमा के लिए आते हैं, we should long for transformation. हमारे मन में वो इच्छा होनी चाहिए. जब इच्छा होगी तभी तो भगवान पूर्ण करेंगे. ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम. कम से कम इच्छा तो होनी चाहिए, कम से कम इतना तो होना चाहिए कि हमारे भाव में परिवर्तन आए. तो उसी को याद करते हुए, इसी चीज़ का स्मरण करते हुए, जब आपका परिक्रमा हो, जब परिक्रमा शुरुआत हो, तो इस भाव को बना के रखेंगे ना, तो आपको नजर आएगा ये चिंतामणि धाम है. परंतु अगर ये धाम मिसिंग होगा तो आपको एक कस्बा या टाउन नजर आएगा जहाँ पे अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं. Like that. Nonetheless, let's start with a quick parikrama here. So I have chosen few places. We'll describe that and we'll begin with it. So you have to a little bit visualize it also, because I don't have facility for presentation, so I'll be speaking it to all of you. तो वृंदावन परिक्रमा की शुरुआत हम करेंगे अपने कृष्णा बलराम टेम्पल से. कृष्णा बलराम टेम्पल में प्रमुखता 3 विग्रह हैं. कृष्णा बलराम, श्री राधा श्याम सुंदर, गौर निताय एंड शिला प्रभुपाद जी का विग्रह है. कृष्णा बलराम मंदिर से बाहर आपको मिलेगा शिला प्रभुपाद जी का समाधि मंदिर, जहाँ पे प्रतिदिन 4 बजे सुबह मंगल आरती होती है प्रभुपाद जी के लिए. उसके बाद 4:30 बजे मंदिर में अंदर दर्शन खुलते हैं और फिर आरती होती है. समाधि मंदिर के सामने ग्रंथ मंदिर कहा गया है उसको. देयर इज अ म्यूजियम. इफ यू हैवंट, sometime during the afternoon you can walk up. There is a whole gallery both above the samadhi and both above the
म्यूजियम देयर, यू कैन विजिट दैट। साथ ही साथ आप जब मंदिर की परिक्रमा, वृंदावन अपना कृष्ण बलराम मंदिर की परिक्रमा करके पीछे जाएंगे तो वहाँ पे शिला प्रभुपाद जी के क्वार्टर्स हैं। 1973 से लेकर 77 तक जब भी शिला प्रभुपाद वृंदावन गए तो कृष्ण बलराम की प्रॉपर्टी में वहीं पे उस स्थान पे रुका करते थे। और उसी क्वार्टर्स में, जो विच इज़ जस्ट राइट बिहाइंड कृष्ण बलराम टेम्पल, आपको साइड से होकर जाएंगे तो वो क्वार्टर्स मिलेंगे। वहीं पे शिला प्रभुपाद जी ने अपने अंतिम दिन या अपनी अंतिम लीला या अंत्य लीला कहा जाए तो वो करी थी। इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल प्लेस। वहाँ पे शिला प्रभुपाद जी के आर्टिफैक्ट्स जो शिला प्रभुपाद जी ने अपने हाथों से यूज़ करे थे, प्रभुपाद जी का पलंग, प्रभुपाद जी का पैन, बहुत सारी चीज़ें वहाँ रखी हुई हैं, उसके दर्शन ले सकते हैं। वहाँ पे भक्त जाते हैं ज़्यादातर चैंटिंग करने के लिए। I don't know right now, but otherwise there is also an opportunity to do kirtans there. Our schedule would not permit, otherwise we could also go and do kirtans there like that. But actually हम लोग तो फिट भी नहीं होंगे, इतनी बड़ी जगह नहीं है। But you can go in your small batches, do visit that place. उस प्रकार से वह स्थान आता है। Around 7:15 is a darshan aarti over here in Vrindavan. 7:15 is a darshan aarti. हम लोग गौड़िया मठ में होकर आए थे अभी, जहाँ हम गोवर्धन में थे। सो शिला प्रभुपाद जी ने जो सिस्टम बनाया है वो थोड़ा अलग है जो गौड़िया मठ में होता है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मंगल आरती, यू नो, दर्शन आरती में भी जो प्रार्थनाएं होती हैं वो सब अलग है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ तुलसी आरती, नरसिम्हा आरती इन गौड़िया मठ। तो जब 7:15 बजे दर्शन होता है सो वहाँ पर आपकी दर्शन आरती होती है। दर्शन आरती में ब्रह्म संहिता के 2 चोजन श्लोक बोले जाते हैं जिसको कहा जाता है गोविंद स्तोत्र। ये सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी। When did this thing started? It started in 1970. I believe ये लॉस एंजलिस ही टेम्पल था, दर्शन आरती का समय था। उस समय सर्वप्रथम मदर यमुना के द्वारा रिकॉर्डेड ब्रह्म संहिता का जो रेंडिशन था वो शिला प्रभुपाद जी को सुनाया गया था। सो आपने देखा होगा, आप किसी भी इस्कॉन मंदिर में जाएंगे, देयर इज अ सेम टेप that plays at the time of दर्शनार्थी। गुरु पूजा अलग अलग भक्त गाएंगे, बट दर्शनार्थी में कोई गाता नहीं है, दर्शनार्थी में टेप चलता है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। This was a unique rendition of Brahma Samhita, so unique and so profound। जब शिला प्रभुपाद जी विग्रह का दर्शन लेते हुए सुन रहे थे, it is described he was stunned. He went into ecstasy, he went into trance, not ecstasy, he went into trance. And even after that rendition stopped, Prabhupada said, this is the best recitation of Brahma Samhita. And that's the time Prabhupada ji ne, उस समय से इस ब्रह्म संहिता का जो रेंडिशन है हर इस्कॉन मंदिर में ये दर्शन आरती के समय इसका उच्चारण होता है या टेप प्ले करी जाती है। Just to let you know what is this prayer is, there are 2 verses. Venum kavantam aravinda dalayatakshyam barahavitasa asitam buddhasundarangam गंधर्पकोटिकमनीय विशेष शोभम गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। In this shloka, Brahma ji is actually describing the beauty of Lord Shri Krishna. दर्शनार्थी में हम भगवान के दर्शन ले रहे हैं। So it begins with Venum kavantam arvindalayataksham. So कहा गया है कृष्ण। So when you're reciting this prayer, actually you should flow through with the prayer. कहा गया है भगवान श्री कृष्ण कौन है? जो बांसुरी को पकड़ के खड़े हुए। अरविंद दला वेणुम कवंतम अरविंद दलायताक्षम, उनकी आंखें कमल के समान हैं और मोर पंख बरहावतम सम असिताम बुध सुंदरांगम, उन्होंने अपने माथे पर मोर पंख लगा रखा है। उनकी खूबसूरती कैसी है? कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, इतनी विशेष शोभा है उनकी, इतनी विशेष शोभा कि हजारों हजारों क्यूपिड, हिंदी में क्या कहते हैं, काम देवता, वह भी भगवान के दर्शन लेकर मोहित हो जाते हैं। ऐसे गोविंद को मैं
प्रणाम करता हूँ. This is what Brahma ji said. Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. Can anyone share this Govinda Sutra in the group so they can recite? And then the second prayer comes. Angani yasya sakalendriya vrittimanti Pashyanti panti kalayanti chiram jaganti Ananda chinmaya sad uchvala vigrahasya Govindamadi purusham tamaham bhajami. So अब भगवान के अंगों का उल्लेख करा गया है. उस प्रकार से he is standing in a threefold bending form. और बताया गया है he is the controller. अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति गौरंगा पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चीरम जगन्ति. He is the overseer, permitter, he is the controller. Ananda chinmaya sad uchvala vigrahasya. His form is full of bliss. His form is full of Satchit Ananda Vigraha. उस प्रकार से कहा गया है ऐसे गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ. So every morning we have this meditation when we look at the beautiful form of the Lord. उस प्रकार से हमारा दर्शनार्थी इस प्रकार से संपन्न होता है. So this is about ISKCON temple, Srila Prabhupada ji का पीछे घर and things like that. So all right, you are at the Krishna Balaram temple. So just to let you know, now you have to go visually. So शाम बाहर निकलते हैं, intersection आता है, चौराहा आता है, चौराहा से आप right लेते हैं. This is the Krishna Balaram temple. You come back to the intersection. सीधे जाएंगे अब. और वहाँ से कुछ only limited places will talk about it. So now you can draw in your map. You're going straight. हम जब कल पद यात्रा के लिए जाएंगे तो we will not take that route because वो लंबा हो जाएगा. But just to tell you a few important places, अगर आप पे समय मिले तो आप अपने समय पर वो जगह देख सकते हैं. So वहाँ पर जो एक कुछ स्थान आते हैं, एक आता है वराहदेव का टेम्पल. That is almost at the corner of the road. जब वहाँ से वो रोड टर्न होती है, उस टर्न से पहले ही वराहदेव का टेम्पल आता है. उसको वराह घाट के नाम से भी कहा जाता है. बाहर गेट से पता नहीं चलेगा. अगर आप वो जानते हैं तभी आपको पता होगा यह वराहदेव का स्थान है. ये वही जगह है जब भगवान श्री कृष्ण ने एक समय में गोपीज को वराहदेव का स्वरूप दिखाया था. तो वहाँ पे वो स्थान है वराहदेव का टेम्पल, या उसको वराह घाट भी कहा जाता है. उसके बाद हम वहाँ से टर्न लेते हैं. नाउ वी आर वॉकिंग राइट नेक्स्ट टू यमुना. यमुना उस समय उसी रोड के पास आया करती थी, बट नाउ यमुना हैव रिसीडेड, इज लिटिल बिहाइंड. तो अभी आपको दिखाई नहीं देगी, पर जब उस रोड पे हम चलते चले जाएंगे तो देन यू विल सी यमुना अहेड. उस रोड पर करेक्ट वी गॉन स्ट्रेट, वी हैव टेकन अ राइट टर्न. नाउ एट द एंड ऑफ द रोड वी टेक अ राइट टर्न. और उस रोड पे टर्न लेने से पहले वराहदेव का मंदिर आता है. देयर आर मेनी अदर प्लेसेस. देयर इज भृगु मुनि स्थान ऑल्सो एटसेट्रा. नॉट भृगु, गौतम मुनि स्थान ऑल्सो ऑन द अदर साइड, बट नॉनदलेस जब हम टर्न लेते हैं, चलना शुरू करते हैं, तो फिर सबसे पहले आपको राइट हैंड साइड में दिखाई देगी ISKCON की गौशाला. इज अ ह्यूज गौशाला. उस गौशाला को क्रॉस करते हैं. उस गौशाला को क्रॉस करके आगे पड़ता है कालिया घाट. हे कालिया, कितने आदमी थे. कालिया बोला था, क्या बोला था? एक मूवी थी ना शोले नाम की, कालिया, राइट? हाँ ना, कालिया, राइट? सो एनीवेज, नॉट दैट कालिया. कृष्ण ने उस कालिया का वध नहीं करा था. 5000 साल पे यू नो दैट देयर वाज अ स्नेक, यू नो, अजगर या जो भी कहना चाहेंगे. सो दैट्स अ प्लेस, इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस. तो उस समय गंगा कह जमुना वहाँ उस घाट तक आया करती थी. और उस कालिया घाट पर एक कदम का वृक्ष है. कदम के वृक्ष पर ही चढ़कर श्री कृष्ण उस यमुना में कूदे थे. There are many interesting leelas, but there are two most interesting pastimes or most frightening. One is the Govardhan, and second is this Kaliya Leela. Because ये जो गोवर्धन लीला थी उसमें भी सब ब्रजवासियों के ऊपर जान पर खतरा था, और दूसरी लीला जिसमें सब ब्रजवासियों की जान पर खतरा था वो था कालिया. जब कालिया घाट पे भगवान श्री कृष्ण पहुंचे थे, उस जगह पर पहुंचने से पहले कृष्ण के और उनके गोपाल की, उनके ग्वालों की, उनके सखों की जितनी भी गायें थी, जितने भी बछड़े थे, वह अपने प्राण त्याग चुके थे कालिया के विष के कारण. बताया जाता है इस यमुना के किनारे जब वो कालिया रहा करता था, उस यमुना के तट के ऊपर से अगर कोई पक्षी उड़ के भी जाता था
इतना विष था उसका, वो पक्षी उस समय ही मर के तुरंत वहीं गिर जाता था। सो यहाँ पे कृष्ण क्यों आए? ये वह जगह थी जहाँ पे कृष्ण का आना अलाउड नहीं था, और ये वह लीला है जिस दिन बलराम जी नहीं थे वहां पर। जब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण आए, उनके आने से पहले यहाँ गायें आई थी, और सब गायें मूर्छित हो गई, और उन गाय को ढूंढते ढूंढते उनके कहते हैं ग्वाल बाल आए, और जब ग्वाल बाल आए वो भी सारे मूर्छित या ये कहिए मृत हो चुके थे। तब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आते हैं, और तब जब ये कृष्ण ने देखा तो उनको समझा क्या स्थिति। ऑफ कोर्स लॉर्ड न्यू व्हाट वाज द पास्ट टाइम। So there's another story where we had the most, what you can say, thrilling pastime. I would say probably that's the word. And कृष्ण जब यहाँ पे पहुंचे तो कदम के वृक्ष पे चढ़े, वहां से कूदे, और फिर कालिया के फन पे उन्होंने he danced on the hoods of the कालिया. In the meantime सभी का आने का समय हो चुका था, बट कृष्ण और बाकी ग्वाले वापस नहीं लौटे थे। तो माँ यशोदा एक गांव से ब्रजवासी को भेजती हैं, और या ये था कि शायद वहां खबर पहुंच गई थी ब्रज में कि कृष्ण कालिया के घाट तक गए हैं। So all the Brajavasis came running here. Now imagine Mother Yashoda, Nand Baba, and all the Brajavasi enter here, and then they see what is the situation, and they see Krishna is in the Yamuna, and Krishna is not visible. He was playing within the Yamuna waters with the Kaliya. And finally, when everyone has come, then Krishna came out. And how did Krishna came out? Krishna at that point of time was captured in the fangs of Kaliya. Or imagine how Mother Yashoda, what would have happened? And she saw Kaliya had hundreds of hoods. And he was tied, Krishna was tied in one of the fangs of Kaliya. Like that, Krishna came out. And Mother Yashoda wanted to jump, but Nand Baba and everyone stopped. उस समय सभी रो रहे थे. Of course, when Krishna came, he woke up, or he brought everyone back to life, all the cows and the gwalas. Otherwise, what would have happened to the parents? I'm making very short, just telling you some very beautiful things here. जब सब लोग वहां पहुंचे तो सभी रो रहे थे, बड़ा हाहाकार मच रहा था. Nobody thought what will happen to Krishna, and Krishna was caught in the fangs of Kaliya. Everyone was crying except for one person. In fact, gopis were here. Everyone was there. And Balramji was smiling. Balramji was laughing. Balramji सोच रहे थे, देखो तो इस कालिया का भाग्य कितना अच्छा है. मैं अनंत शेष होकर कृष्ण मेरे संग कभी नहीं खेले. ये छोटे से वाटर स्नेक के संग कृष्ण खेल रहे हैं. And like that, Balramji was smiling. And that time, gopis and gopas were wondering, अरे यहां पे कृष्ण का जीवन खतरे में है और बलराम जी तो मुस्कुरा रहे हो. बलराम जी बोले, देखो आगे आगे क्या होता है. And that's the time Krishna jumped out from the fang and he jumped on the hood of Kaliya and he began to dance. So जो कदम का वृक्ष है जिससे कृष्ण कूदे थे, वह कदम का वृक्ष बताया जाता है, वो आज भी है. So when you go to Kaliya Ghat, when you will enter that place, so there is a vraksha that is said to be 5,000 years old. And why it is still living? Because it was touched by the footprint of Lord. So that is the same Kadam Ka Vraksha. And behind that Kadam Ka Vraksha, there is a Bhajan Kutir of Srila Prabodhanand Saraswati, जो कि गोपाल भट्ट गोस्वामी के अंकल थे. उनका श्री चैतन्य महाप्रभु का साउथ इंडियन यात्रा में जब वे श्रीरंगम पहुंचे थे, श्रीरंगम के बाद वहाँ चतुर्मास के लिए रुकने के बाद जब वे आगे बढ़े थे तो वहाँ पे प्रबोधानंद सरस्वती से मिलना हुआ था. और फिर वहाँ से प्रबोधानंद सरस्वती वृंदावन आए और इस स्थान पर, इस कालिया घाट पर स्थान पर प्रबोधानंद सरस्वती रुके. तो वहाँ पे उनको प्रणाम करते हुए विल मूव फॉरवर्ड फ्रॉम देयर. और उसके बाद वहाँ से आगे चलते हैं, थोड़ा सा ही आगे चलते ही आता है श्री राधा मदन मोहन का मंदिर. उसकी जो एंट्री है वो दूसरी तरफ से है, बट बिकॉज वी आर गोइंग फ्रॉम द परिक्रमा मार्ग, तो पीछे से भी एक रास्ता आता है, स्टेयरकेस आती है. तो पहले हम मदन मोहन के मंदिर नहीं पहुंचते, पहले हम पहुंचते हैं द्वादश आदित्य टीला. व्हाट इज दिस द्वादश आदित्य टीला? द्वादश मीन्स 12, आदित्य मीन्स सूर्य. सो जब भगवान श्री कृष्ण कालिया लीला संपन्न कर कर वहां से बाहर निकल कर पहुंचे तो कृष्ण को ठंड लग रही थी. हिज बॉडी वॉज ट्रेमलिंग बिकॉज ऑफ द कोल्ड, बिकॉज ही वॉज इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो बताया जाता है उस टीला पर आकर कृष्ण बैठे थे और कृष्ण के शरीर को गर्मी देने के लिए 12 आदित्य वहां पर आते हैं.
and they gave warmth to the body of Krishna. उस समय से उस जगह का नाम पड़ा द्वादश आदित्य टीला. का समय मिलेगा तो विल सिट देयर एंड डू सम भजन. एंड वही स्थान था जहां पे मदन मोहन का मंदिर बना था. मदन मोहन वॉज द फर्स्ट टेम्पल दैट गॉट बिल्ट इन वृंदावन. पर 1670 में जब औरंगजेब ने हमला करा था तो मंदिरों को तोड़ दिया था, तो मदन मोहन मंदिर को भी तोड़ दिया था. जो आज आप मदन मोहन मंदिर देखेंगे द्वादश शिला के बिल्कुल सामने जो आज मंदिर देखेंगे वो ओरिजिनल मदन मोहन नहीं है. दिस इज कॉल्ड एज न्यू मदन मोहन टेम्पल. उस प्रकार से सो यू विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ न्यू मदन मोहन टेम्पल. लेट्स से यू आर स्टैंडिंग इन द्वादश टीला, यू आर लुकिंग एट मदन मोहन टेम्पल. बिहाइंड इज यमुना. अब यमुना के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे द्वादश टीला से, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच वाटर इज देयर. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ मदन मोहन टेम्पल इज सनातन गोस्वामीज भजन कुटीर. ये वही स्थान है जहां पे सनातन गोस्वामी पहले मदन मोहन की सेवा करते थे. ये वही स्थान है जहां पर ये क्या नाम है, आगरा के जो बहुत बड़े लखपति या करोड़पति सेठ जी थे, रामकृष्णा उनका कुछ ऐसा नाम था, वो उसी जगह पर आकर सनातन गोस्वामी से मिले. I'll tell you all the stories when we talk about 7 temples of Vrindavan today evening. I'll give you more details there. तो यहाँ से सनातन गोस्वामी जी का भजन कुटीर का दर्शन लेते हुए we go from this direction and then come and take darshan of the temple. So जो राधा मदन मोहन का जो विग्रह है वह आज वृंदावन में नहीं है, वह विग्रह अब करौली में है. करौली में कैसे पहुंचा, दिस विल बी अ डिस्कशन फॉर इवनिंग प्रोग्राम. पर वहां पे उनका प्रतिभू ऑलमोस्ट सिमिलर लाइक डीटीज इज देयर विच आर वर्शिप टुडे. तो वहां पे आपको मिलेंगे मदन मोहन. मदन मोहन के संग आपको देखेंगे ललिता एंड साथ में देखेंगे श्रीमती राधा रानी. ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ मदन मोहन इज ललिता and Srimati Radharani is always on the left hand side, so Radhika would be on the left. We take a darshan. Madan Mohan के temple का दर्शन लेने के बाद we'll go downwards. So there is a steps going in front. We'll go there and then from there we'll take a right turn. हरे कृष्णा. आप लोग का बहुत अटेंशन होना पड़ेगा इस सबको फॉलो करने के लिए, कल वरना आपकी परिक्रमा में निताई गौर हरि बोल. And because we have to be quick, because after some time after 9 o'clock it's sunny. You know, it's not a December time. You can be out there 1 o'clock. So you got to be fast. So नीचे दामोदर मदन मोहन टेम्पल से उतरने के बाद we take a right turn. Right turn लेने के बाद आप सीधे चलते जाएंगे. Then at the curve, end of the curve, then we have Sanatan Goswami Samadhi Mandir. We take darshan, we offer prayers. और वहीं पे ही ग्रंथ मंदिर और ग्रंथालय भी कहा जाता है जहाँ गोस्वामियों के द्वारा लिखे हुए ग्रंथों को प्रिजर्व करके रखा गया है. वहाँ पे अलग अलग समाधियाँ हैं. व्हाट इज समाधि, व्हाट इज इम्पोर्टेंस, आई स्पीक, आई टेल यू टुडे इवनिंग, सो दैट आप कल जब दर्शन लेंगे समाधि तो आप एक सही मूड में समाधि के दर्शन ले सकें. फ्रॉम द सेम प्लेस वी टेक अ यू टर्न, वी कम बैक ऑन द सेम लेन जहाँ से गए थे. वी क्रॉस राधा मदन मोहन जिस स्टेयर से उतरे थे, एंड फ्रॉम देयर वी कम बैक ऑन टू द स्ट्रीट. स्ट्रीट पे आते ही we take a right turn. We don't take a left turn. We take a right turn. Right turn लेते ही सामने आता है अद्वैत वट. अद्वैत वट छोटा सा मंदिर है, बहुत खूबसूरत विग्रह है. उस मंदिर में प्रवेश करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में वट आता है जिसको कहा जाता है अद्वैत वट. अद्वैताचार्य यहाँ पर आए थे श्री चैतन्य महाप्रभु से कई समय पहले, और उनको इसी वट के नीचे मदन गोपाल या मदन मोहन का विग्रह मिला था. और फिर उन्होंने ही अद्वैताचार्य जी ने पुरुषोत्तम चौबे, मथुरा के एक बहुत प्रसिद्ध ब्राह्मण थे, जब अद्वैताचार्य वापस गए शांतिपुर तो उन्होंने मदन गोपाल का विग्रह पुरुषोत्तम चौबे को दिया था सेवा करने के लिए. तो वहां से अद्वैत वट अद्वैताचार्य से प्रार्थना करते हुए देन अगेन वी कम आउट. सो नाउ वी हैव कम बैक फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द टेम्पल. वी टेक अ लेफ्ट टर्न एंड वी वॉक ऑन द लेफ्ट लेन. फिर वहां से आगे जाके पड़ता है बाके बिहारी जी का मंदिर. बाके बिहारी जी के मंदिर के बारे में अगर कहा जाए, हरिदास जी, उनको ये विग्रह प्राप्त हुआ था निधिवन में. वेरी ब्यूटीफुल डीटी. केवल बाके बिहारी हैं, देयर इज नो श्रीमती राधा रानी, बिकॉज बाके बिहारी जी के दर्शन में कहा जाता है बाके बिहारी जी इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ श्रीमती राधा रानी एंड कृष्णा. पर ओके, वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप परिक्रमा करने से पहले अपने अस्त्र शस्त्र का ख्याल रखिएगा,
क्योंकि आपके अस्त्र शस्त्र को लूटने वाले बंदर बहुत हैं यहाँ पर. So all of you have got your bag. We gave a bag to all of you. Do carry a bag tomorrow and keep things. केवल जब भगवान के दर्शन ले रहे हो ना, तभी दोनों हाथों से पकड़ के चश्मा निकालना और पकड़ के रखना. कब कहाँ से बंदर आ जाए पता नहीं होता. दर्शन लेने के बाद चुपचाप उतार के बैग में रख देना, वरना आपकी परिक्रमा थोड़ी विघ्न आ जाएगी. क्योंकि चश्मा या मोबाइल, और मोबाइल तो ध्यान से निकालिएगा, ठीक है. Of course, mobile is not easy unless you keep it loosely in the pocket. Then they may take it out. मोबाइल तो नहीं निकालते, राइट? चश्मा ही चुराते हैं, राइट? ओके, एडवांस हो गए हैं बंदर. ऑलराइट, आई डोंट नो अबाउट इट. एनीवेज, ठीक है. एनीवेज, सो उस चीज का ध्यान रखिएगा. कैरी दैट. सो वी गो टू बाकी बिहारी टेम्पल बिकॉज वी विल बी देयर इन द मॉर्निंग आवर. कृष्णा विलिंग, देयर विल नॉट बी मच रश. अदरवाइज बाकी बिहारी टेम्पल हैज अ लॉट ऑफ रश एंड वो पतली सड़कें हैं, तो वहाँ पे कई बार बहुत धक्का मुक्की हो जाती है. So hopefully Krishna willing tomorrow morning. What is tomorrow? Friday? Thursday? Tomorrow is Friday. Okay, so hopefully there should not be much rush. So वहाँ से बाकी बिहारी जी का दर्शन लेते हुए फिर उधर से ही we'll have to follow behind. बाकी बिहारी जी के मंदिर के सामने एक रोड जा रही है जहाँ से हम बाहर निकलते हैं. अदरवाइज आप वहाँ पे भटक जाएं तो वहाँ से पूछिएगा राधा वल्लभ जी का मंदिर कहाँ है. So बाकी बिहारी के मंदिर से सिर्फ एक लेन छोड़कर आगे आता है राधा वल्लभ जी का मंदिर. एटलीस्ट आई वुड से फॉर मी इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल डीटी, मोस्ट ब्यूटीफुल डीटी. ऑफ कोर्स ऑल ऑफ अस मे हैव अ ओन अट्रैक्शन. सो राधा वल्लभ जी के मंदिर में जाएंगे. उनकी अपनी ही कहानी है, बट वह राधा वल्लभ जी का जो विग्रह है वह मिला था कहते हैं हरिवंश जी को. सो अ वेरी ब्रीफ स्टोरी ऑफ राधा वल्लभ जी. राधा वल्लभ जी का विग्रह कैसे आया? ये कोई वृंदावन में नहीं पाया गया था, अनलाइक अदर प्लेसेस. ये वचन आपके द्वारा स्थापित भी नहीं किया गया था. सो व्हाट इज द स्टोरी ऑफ वल्लभ जी? तो हरिवंश जी का जहां विवाह हुआ था, एक्चुअली हरिवंश जी को ये वल्लभ जी का जो विग्रह है दहेज में मिला था. ही गॉट इट इन अ डाउरी ऑफ दहेज. सो जो उनके इन लॉज थे उनको ये विग्रह मिला. कैसे मिला? जो उनके पत्नी के पिता थे उनको अपने पिता से मिला था. विच मीन्स ग्रैंड फादर हैड गॉट दिस विग्रह वल्लभ जी. अब ये ग्रैंड फादर को कैसे मिला? जो लड़के के ग्रैंड पिता थे, ही वॉज अ वेरी वेरी ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा. वह शिव जी के बहुत भक्त थे, बहुत बड़े भक्त. तो एक बार शिव जी उनको प्रकट होते हैं एंड शिव जी कहते हैं कि मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ हूं, आपकी सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुआ हूं, मांगिए आप मुझसे क्या मांगना चाहेंगे. तो कहा जाता है कि उन्होंने कहा था कि प्रभु जो आपके सबसे प्रिय हो आप मुझे वो दीजिए. एंड इट वॉज लॉर्ड शिवा हु गेव दिस वल्लभ जी का विग्रह. और वहां से वल्लभ जी का विग्रह आते हुए हरिवंश जी को मिला, जो कि कृष्ण के बहुत महान भक्त थे. उस प्रकार से वल्लभ जी की स्थापना हुई. उसी लेन में जहाँ राधा वल्लभ जी का मंदिर है वहाँ नरसिम्हा का मंदिर भी आता है, तो इसलिए मैंने उसको इंक्लूड करा है. वी कैन टेक अ दर्शन ऑफ नरसिम्हा टेम्पल. सो ये हुआ आपका. नाउ वी आर ऑलमोस्ट इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ वृंदावन. दे कैन प्ले एट द रिसेप्शन, राइट? देयर आर एनफ स्पेस फॉर देम. ओके, we'll have to find our way, but अभी हम अंदर आ चुके हैं. Now we have to again go back onto the path of Yamuna. और आपको बाहर जाने के लिए आपको पूछना पड़ेगा, अगर आप लोग अपने आप रह जाते हैं, इमली तल कहाँ पे आता है? और इमली ताल, नॉट इमली तल, इमली ताल घाट. इमली ताल ये वह स्थान है. इमली ताल मीन्स इमली, टैमरिन के वहाँ वृक्ष हुआ करते थे. वहाँ पे अनेक श्री राधा कृष्ण के पास टाइम्स रहे हैं. जो एक प्रमुख लीला वो ये है इमली ताल में कि वहाँ पर एक समय जो लीला घटी थी वह ये कि भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के स्मरण में गौरांग या जो उनका सौंदर्य था उस प्रकार के हो जाते हैं. और श्रीमती राधा रानी वहाँ पर श्री कृष्ण के स्मरण में कृष्ण का जो रूप है, यू नो द डार्किश कॉम्प्लेक्शन, उस प्रकार से उसको स्वीकार लेते हैं. उस प्रकार से वहाँ वो लीला आती है. और उसी इमली ताल के वृक्ष के नीचे बैठ के श्री चैतन्य महाप्रभु जब वहाँ आए थे वो भजन किया करते थे. और वह इमली ताल वृक्ष आज भी है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको आप देखिएगा.
वेरी स्पेशल वृक्ष. सो इमलीताल घाट कहा गया है. सो वी आर बैक अगेन एट द मेन यमुना रोड. और उसी इमलीताल घाट से, ताल मंदिर या घाट से आगे थोड़ा चलकर, इट्स अ वेरी स्मॉल प्लेस, बहुत छोटा सा द्वार है. आई डोंट नो हाउ कैन यू फाइंड इट, बट मे बी यू कैन आस्क. आता है श्रृंगारवट. उस द्वार को आप अंदर खोल के जाएंगे तो बहुत बड़ा आंगन आता है, और वहां पे आते हैं, कहते हैं विग्रह आते हैं. देयर इज अ गॉड निताय डीटीज. एंड श्रृंगारवट वह जगह है जहां नित्यानंद प्रभु जब आए थे. सो ही स्टेड एट श्रृंगारवट. व्हाट इज श्रृंगारवट? ये वह स्थान है जहां गोपास कृष्ण का श्रृंगार किया करते थे. दे वुड डेकोरेट कृष्णा. दिस इज कॉल्ड एज श्रृंगारवट, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज नित्यानंद वट. और उसी श्रृंगारवट से साइड से एक छोटा सा रास्ता जाता है. तो आप जब अंदर अंदर गलियों से निकलेंगे ना, वहां आपका सामना होगा अनेक बंदरों से. बंदरों को देखना नहीं, बंदरों के संग खेल मत करना, और केले का थैला लेके मत जाना. खाली आ जाइएगा, बैग है, ठीक है. बंदर कुछ नहीं कहेंगे, रास्ते में है, आप अपने आराम से निकले. बंदर विल नॉट डिस्टर्ब यू. दे डोंट हार्म एनीवन. क्योंकि उस रास्ते में पर्टिकुलरली बहुत बंदर हैं. इस लाइक हवेली का जो कोर्टयार्ड होता है ना, वैसा है, और वहां पे बहुत बंदर रहते हैं. वहां से निकल के फिर हम पहुंचेंगे, वी आर अगेन बैक इन साइड. एंड this is the best I can give you. I don't know if you're able to follow, but if you have written down places, you can follow through with that. And then when we come inside again, then we are close to Nidhivan. Nidhivan is a place where all those beautiful pastimes, बांके बिहारी जी का जो विग्रह है वो निधिवन में ही पाया गया था. निधिवन वह है जहां पर श्री राधा कृष्ण की रासलीला या नॉक्टर्नल पास टाइम्स हुआ करते थे. और उस निधिवन के समीप आता है. सो जो आज निधिवन की बाउंड्री देखेंगे वो बहुत छोटा है. अदरवाइज निधिवन मीन्स वाज ह्यूज अर्लियर. और वहां पे हम सबसे पहले पहुंचेंगे राधा दामोदर के मंदिर में. सो नेक्स्ट स्टॉप वुड बी ऑफ राधा दामोदर टेम्पल, लाइक दैट. ये वही जगह है जहां श्रीला प्रभुपाद जी, आई बिलीव 1962 से लेकर 65, 3 साल के लिए वहाँ पे श्रीला प्रभुपाद जी रुके थे. राधा दामोदर टेम्पल के बारे में उसका जो एक प्रकार से चर्चा है, और वहाँ पे कौन कौन है उसका मैं उल्लेख आज शाम को करता हूँ. फिर वहाँ से आगे निकलते हैं तो सेवा कुंज आता है, लाइक दिस. दिस इज कॉल्ड एज अ प्लेस ऑफ रास लीला. एंड वहीं पर आगे आता है सेवा कुंज में श्रीमती पूर्णमासी का मंदिर. अगर हम खोज पाए तो वहां पे पूर्णमासी का दर्शन ले सकते हैं. और ये सिर्फ गलियों गलियों का भेद है. एक गली से दूसरी गली में जाना है, और उसी से दूसरी गली में जाते हैं तो वहां आता है राधा श्याम सुंदर का मंदिर. राधा श्याम सुंदर के मंदिर के से सिर्फ थोड़ी फ्यू मीटर्स बिफोर देयर इज अ प्लेस ऑन द अपोजिट साइड जो श्यामानंद समाधि या तिलक स्थान कहा जाता है. दिस इज ऑल सेवा कुंज और निधिवन एरिया. सो श्यामानंद जब यहाँ पे थे, उनका पहला नाम था दुखी कृष्णदास. उनको जीव गोस्वामी के द्वारा सेवा दी गई थी. सो निधिवन और सेवा कुंज जो एरिया है, दिस इज द सेम प्लेस. आपने देखा होगा 6 गोस्वामी साथ में बैठे हैं. The 6 Goswami will sit at Seva Kunj or Nidhivan and will do all their discussions, writings and everything. Damodar temple वही है जहाँ रूपा गोस्वामी एक समय पे रहा करते थे. So then when you go to Shyamasundar temple, just before that on the opposite side comes a place जहाँ पर सेवा कुंज के लिए श्यामानंद प्रतिदिन दुखी कृष्णदास झाड़ू लगाया करते थे. और एक दिन ऐसे ही वे झाड़ू लगा रहे थे, वहां पे उनको बहुत अनमोल क्या कहते हैं, एंकल बेल, एंकलेट्स, पायल, right? Payal Mili. And then he was wondering whose payal it is. And that payal turned out to be of Srimati Radharani. So this is a place, pastime places of Shri Radha and Krishna. And Srimati Radharani sent her gopi, I believe Lalita देवी वहाँ पहुँचती हैं. और जब वह उनके सामने पहुँचती हैं तो दुखी कृष्णदास समझ गए this is not an ordinary thing. तो उन्होंने पूछा ये किसकी है? तो वह गोपी बोलती है ये मेरी रानी की है. तो दुखी कृष्णदास ने कहा कि अगर आपकी रानी को चाहिए तो बोलो कि वह स्वयं मुझसे ये पायल लेकर जाएं. एंड देन श्रीमती राधा रानी अपीयर टू दुखी कृष्णदास, gave her darshan, and she touched that ankle bell to his forehead,
जिसके द्वारा उनको एक नया तिलक वहां प्राप्त हुआ। और देन श्रीमती राधा रानी ने स्वयं अपने हाथों से श्याम सुंदर का एक छोटा विग्रह दुखी कृष्णदास को दिया था। जो आप राधा श्याम सुंदर मंदिर में जाएंगे, देयर इज वन बिग राधा श्याम सुंदर मंदिर और श्रीमती राधा रानी के द्वारा दिया हुआ छोटा सा श्याम सुंदर का विग्रह। अगर नहीं नजर आए, वहां पुजारी रहते हैं, आप उससे पूछिएगा, सो दे विल टेल यू। सो डू टेक दर्शन ऑफ श्याम सुंदर। उस प्रकार से आपके श्याम सुंदर जी के दर्शन होंगे। एंड लेटर ऑन दुखी कृष्णदास was renamed as Shyamananda because of this Shyama Ananda who gives pleasure. So यहाँ हुआ राधा श्याम सुंदर टेम्पल like this. उसके बाद we will be coming out and we'll be going towards more towards the निधिवन boundary. जब हम निधिवन के समीप पहुंचेंगे, एक जो एंट्री गेट है निधिवन का, बहुत बड़ा गेट है और अंदर बहुत बड़ा एक महल जैसा नजर आता है। So anyone of you have gone inside? Have seen that? That is called as शाहजी टेम्पल। वो लेट 18th सेंचुरी में जो कि वृंदावन के आज के तारीख में सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है, बहुत बड़ा स्थान है। वो लेट 18th सेंचुरी में राधा रमन जी के लिए स्थापित किया गया था, पर राधा रमन जी ने वहां आने से मना कर दिया था। तो शाहजी टेम्पल में आज छोटे राधा रमन जी हैं। अगर हुआ मौका तो हम छोटे राधा रमन जी का दर्शन लेंगे। विल टेक अ दर्शन, कम बैक, एंड we are here, we come here. On the left hand side, if you go on the left hand side, yeah, from the left hand side boundary of it, when we go inside, then we come to राधा रमन टेम्पल। तो आज शाम हम जब जाएंगे, आज शाम हम 3 विग्रहों का दर्शन लेंगे। उसमें से एक होंगे राधा रमन जी एंड राधा गोकुलानंद। राधा रमन जी के दर्शन लेंगे। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेन इज राधा गोकुलानंदा। हम राधा गोकुलानंद का दर्शन लेके विल टेक अ यू टर्न राधा रमन की तरफ से लेफ्ट लेते हुए हम आगे जाएंगे तो वहां पे आते हैं राधा गोपीनाथ जी का दर्शन। और वहां से राधा गोपीनाथ जी का दर्शन लेके नेक्स्ट व्हाट यू कैन आस्क इज फॉर वंशीवट। उधर से ही सीधे जाना है, थोड़ी गलियों से निकल के तब हम पहुंचते हैं वंशीवट। और वहीं पे वंशीवट से पहले आपको मिलेंगे क्या नाम है शिव जी का यहाँ पर, गोपेश्वर महादेव। जस्ट बिफोर वंशीवट यू विल गेट दर्शन ऑफ गोपेश्वर महादेव। गोपेश्वर महादेव को प्रणाम करिएगा। अंदर गली में जाएंगे, वंशीवट मिलेगा। यू नो दिस इज वेयर आई बिलीव गोपीनाथ डीटीज वर डिस्कवर्ड, इफ आई एम करेक्ट। वंशीवट, उस प्रकार से वंशीवट का दर्शन लेकर देन वी कम बैक वंशी गोपाल टेम्पल। यस, फिर वंशीवट से हम दर्शन लेकर यू कैन आस्क फॉर, वी अगेन कम बैक टू वृंदा परिक्रमा अराउंड द बैंक ऑफ यमुना। देन यू कैन आस्क फॉर केशी घाट। फ्रॉम देयर यू कैन चेक फॉर केशी घाट, दिस इज जस्ट सम डिस्टेंस अवे। उसको एक्चुअली जो केशी घाट जगह है, केशी घाट जगह क्या है, केशी घाट जगह वह है, रिमेंबर केशी वॉज व्हाट काइंड ऑफ डीमन, केशी वॉज हॉर्स डीमन। और उसी के भय से, उसी के आतंक से सबसे पहले पार्जन्या और उनके पुत्रों और पूरे यदुवंश को कहते हैं नंदगांव से शिफ्ट होना पड़ा था गोकुल में। सो दिस केशी डीमन वॉज द लास्ट डीमन दैट वॉज किल्ड हियर बाय लॉर्ड। सो केशी घाट जो है वहां पे एक बहुत बड़ा और भव्य मंदिर बना हुआ है। आज वहां पे विग्रह की पूजा नहीं होती तो आपको थोड़ा खंडर जैसा दिखेगा, पर उसका नाम है युगल किशोर मंदिर। वहां पे एक समय पे युगल किशोर के विग्रह थे। Therefore you will see it looks like a palace। और उनके उस पैलेस में से होते हुए फिर हम केशी घाट की तरफ पहुंचते हैं, like that। इसकी स्थापना 1500, तो 4 मंदिरों की स्थापना की आज्ञा अकबर से मिली थी। अकबर 1570 में आए थे, I'll give you more details in the evening। और उनसे 4 मंदिरों की स्थापना की परमिशन मिली थी, मदन मोहन, गोविंद देव and Gopinath temple, and the 4th was Yugal Kishore temple। So like this Yugal Kishore temple was built in 1627, परंतु 1670 में तोड़ दिया गया औरंगजेब के द्वारा। तब से वो एक प्रकार से खंडर बना हुआ है, वहां पर पूजा नहीं होती है, like that। युगल किशोर के विग्रह को वहां से मूव कर दिया गया था। केशी घाट से हम फिर उधर आगे होते हुए फिर वहां से हम आगे जाएंगे डायरेक्टली टू गोविंद देव टेम्पल।
Now we have reached to the far end of Parikrama, opposite end of the Parikrama from this side, and then we'll reach to the Govind Dev temple. Right opposite, you can say diagonally opposite to temple is Govind Dev temple is Shri Ranganath Ji's temple. श्री रंगनाथ जी इस टेम्पल में एक आती है वेणु कूप, बहुत प्रसिद्ध है। ये कुआं है जो एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अपने बांसुरी को जब जमीन से टच करा था तो वहां पे ये कूप पैदा हुआ था, कुआं पैदा हुआ था। उसी के पानी से आज भी गोविंद देव को स्नान किया जाता है। सो हम श्री कहते हैं रंगनाथ जी का दर्शन लेंगे, वहां से गोविंद देव के मंदिर में पहुंचेंगे। गोविंद देव की विग्रह इज नॉट देयर नाउ, दैट्स इन जयपुर। और ये करीबन 18वीं सदी तक ये एक मॉस्क में परिवर्तित हो गया था, परंतु एक ब्रिटिशर ने जो गोविंद देव की भक्ति से प्रभावित थे, उन्होंने कोर्ट केस करके ये कोर्ट केस जीत कर वह जगह जो 7 मंजिला भव्य मंदिर हुआ करता था, आज केवल 3 स्टोरीज रिमेनिंग है, वह वापस हिंदुओं को दिया और उसके बाद वहाँ पे दोबारा विग्रह की स्थापना की गई। तो वहाँ दर्शन लेंगे। बाकी वहाँ पे कुछ और चीज़ें भी हैं, उसको लेकर मैं आपको शाम को डिस्क्राइब करता हूँ डिटेल में। वहाँ से गोविंद देव के मंदिर में का दर्शन करने के बाद आगे स्थान आता है 64 समाधि। समय मिलेगा तो 64 समाधि में वहाँ पे अनेक अनेक भक्तों का वहाँ पे हम दर्शन लेंगे और प्रणाम करेंगे। तो उसमें से सबसे सर्वप्रथम जो समाधि आती है वो आती है गोविंद देव के सर्वप्रथम पुजारी की, तो उनका वहाँ पे हम प्रणाम करके उस प्रकार से वी विल कंक्लूड अवर परिक्रमा। अगर आपको सिर्फ परिक्रमा करनी है तो फिर गोविंद देव के सामने से जो रोड आती है वहाँ से आप पूरा लाइक अ रिंग रोड, वहाँ से पूरा घूमते हुए you will come here, which is many kilometers away. We are not intending to do that because for me परिक्रमा just doesn't mean कि हम सिर्फ रास्ते पे पदयात्रा करके आ जाएं। परिक्रमा for me means we visit different temples. So Vrindavan Yatra cannot be concluded in one time. Vrindavan Yatra is something where we come again and again and we do certain portions of it. So इस वृंदावन परिक्रमा के लिए, क्योंकि हम पे अब अगले 2 दिन ही बचे हैं, अगर आप में से कोई लोग चाहेगा तो यू कैन लेट अस नो अवर टीम, मे बी ऑन सैटरडे मॉर्निंग वी कैन प्लान फॉर गोइंग मथुरा लेट, एंड मथुरा में सिर्फ हम एक स्थान देख सकते हैं। फिर इफ यू वुड वांट टू देन वी कैन प्लान होल वृंदावन परिक्रमा ऑन सैटरडे मॉर्निंग, देन विल डू होल कंप्लीट परिक्रमा। हाउ मेनी आवर्स दिस टेक्स बॉयज, रिमेंबर हाउ मच टाइम इट टुक लास्ट टाइम? 3 to 4 hours, but we can start somewhere at 4:30, by 8:30 we can complete like that. अगर हम कहीं नहीं रुके तो, पर रुकने के तो बहुत स्थान है, some places. Anyways, like that we can plan for Saturday. You can let us know your feedback to Kaushal Prabhu and Gaurav कहते हैं Varun Prabhu. We can plan like that. So our yatra, our parikrama will end at 64 Samadhi Temple or Govind Dev Temple, and that would be enough for this time visit. ये जो परिक्रमा है हम इसको 2 भागों में करेंगे। आज शुरुआत करेंगे और बाकी हम कल करने का प्रयत्न करेंगे। जो कल सुबह नहीं हो पाया उसको फिर हम शाम को करने का प्रयत्न करेंगे। और एज वी विल हैव अ कंक्लूडिंग सेशन टुमारो इवनिंग हियर। अगर बाई चांस कल शाम को अगर समय नहीं हुआ तो परसों सुबह मेरे ख्याल से, लेट मी आस्क यू, हाउ मेनी ऑफ यू वुड, इफ यू गो टू मथुरा, मथुरा में 3-4 जगह हैं जो देख सकते हैं। विश्राम घाट, द्वारकाधीश टेम्पल। जनरली डिवोटीज डोंट गो टू द्वारकाधीश टेम्पल बिकॉज वहाँ श्रीमती राधा रानी नहीं है। सो भक्त कहते हैं जहाँ श्रीमती राधा रानी नहीं, हम नहीं जाएंगे। So generally it doesn't go. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur also didn't go, although it's a very beautiful temple and deities. Temple means deities are very beautiful. And right next to that is Varaha Dev's temple. Uski samay mila to I'll tell you the story of it. And then there is Keshav Ji's temple. You know, the land, the place where there's a contention. So as such, Vishrang Ghat is one place. जनरली विश्राम घाट पे जाके स्नान किया जाता है, बट बिकॉज वी हैव जस्ट कम बिफोर द रेनी सीजन, तो वहाँ पे अब शायद ही कुछ पानी रहा होगा। और सब कुछ अच्छा है, पर वहाँ पे ब्राह्मण देवता की कृपा बहुत प्राप्त होती है, तो मुझे थोड़ा जाते हुए डर लगता है। मैं भी कुछ बचते बचते हुए जाता हूँ। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम ये कवर कर सकते हैं, और एल्स आई वुड हाईली रिकमेंड वी कैन डू वृंदावन परिक्रमा। सुबह पूरी वृंदावन परिक्रमा करते हुए आप 8, साढ़े 8 तक आए, प्रसादम लिया, बैग्स पैक करे, उसके बाद करीबन 11 बजे यहाँ से निकल सकते हैं
और 11 बजे निकलने के बाद आप पे करीबन 3-3.5 घंटे हैं। उसमें 3-3.5 क्या, वो टेम्पल तो बंद हो जाएगा ना केशव जी का 1 बजे तक, तो आप 12 बजे बंद हो जाते हैं। वृंदावन में तो 12 बजे बंद होते हैं। तो वैसे भी केशव जी का टेम्पल आप बाहर से देख के खुश हो जाइएगा। वहाँ क्या है, विग्रह तो है नहीं, जो जन्म स्थान है वो छोटी सी गुफा है एंड में। सो इट्स ऑल योर चॉइस, यू डिसाइड। If somebody is not yet much comfortable for another parikrama, we can have some buses leave early. They can go there, like that we can plan. And that's how we'll kind of plan out. So the plan for today, as I said before also, so today evening we'll have program in Radha Gokulananda temple. So वहाँ पर मंदिर मार्जन करने की बहुत सेवा है। जैसे दुखी कृष्णदास झाड़ू लगाकर उनको राधा रानी की कृपा मिली थी, तो आप सभी को कृपा मानने का मौका है। वहाँ पे झाड़ू लगाने का बहुत मौका है। जो बहुत इच्छुक हों आप अपना नाम दे सकते हैं। लंच के बाद तुरंत निकलेंगे and we'll clean up Radha Gokulanand temple. We wanted to render one service at least to one Goswami temple, so we'll render that service to Gokulanand temple because we are doing our program there. और वहीं से हम अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे आज शाम का। So on an average, around those of you who are not going for Mandir Seva, you should leave by 3:30 at max. आपको बाहर से ऑटोज मिल जाएंगे, उनको बोलिएगा राधा गोकुलानंद टेम्पल, सभी जानते होंगे, नहीं तो नहीं राधा रमन टेम्पल तो शो। राधा रमन टेम्पल पे उतर के जस्ट 100-200 मीटर लेफ्ट हैंड साइड पे टर्न होकर आना है। वहाँ पे हम सब आपका इंतजार करेंगे। All right, that will be evening program. Tomorrow morning we'll let you know what time we start our parikrama. क्योंकि मदन मोहन टेम्पल तो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, तो थोड़ी रोशनी होनी चाहिए, विग्रह के दर्शन नहीं होंगे। वी कैन स्टार्ट समवेयर अराउंड 5 o'clock. मंगल आरती समाप्त होते ही वी कैन लीव एंड लाइक दैट वी कैन डू दैट। ऑल राइट, एंड विल ट्राई टू कवर एज मेनी ऑफ दीज थिंग्स विच वी हैव डिस्कस्ड and then we'll move forward like that. And tomorrow evening we'll assemble here, we'll have a concluding program, and then day after tomorrow, if in case all of you want, we'll have a full Vrindavan Parikrama, Padiyatra, or else Mathura visit. With that, I'll pause here. Thank you very much. Jagadguru Srila Prabhupada ki, Vrindavan Dham ki, Hare Krishna.